ਡੱਲਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾੜ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਵੀ ਡੱਲਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜੀ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਿਆ ਵੀ ਡੱਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੌਮ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਡੱਲਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂ, ਆਖਰ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਨਵੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਈਫਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਏ, ਸਭ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਡੱਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਜਾ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਈਫਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਓ ਬਈ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਜਦ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਦੋ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੱਗ ਬੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਕੇਸ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੰਘਾ ਵਗੈਰਾ, ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਈ ਰਾਈਫਲ ਪਰਖਣੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਪੱਗ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਓ। ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੰਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਆਪਸਰੀ ਵਿੱਚ ਝਗੜਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਈ, ਔਰ ਫੈਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਟਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਮਕੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਵੀ ਡੱਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। Dalla was the chief of a tribe in the Malwa region, and after Guru Gobind Singh was defeated once by the Mughals, when he came to the Malwa region, Dalla told Guru Gobind Singh that if you had remembered me or if you had called me, I would have come down there with very strong people of my tribe, and then you would have not been defeated. Guru Gobind Singh Ji lovingly said, well Dalla, you know that it was the will of the master and it was supposed to happen like that, so that's okay. But Dalla said that no master, if you had remembered me, if you had called me, there are many warriors, many strong people, very brave people in my tribe, and I would have brought all of them and then we would have fought very well. So Guru Gobind Singh again said, well no, that's okay, it was the will of God. But Dalla insisted, he wanted to show that his people were full of bravery and they were very strong. So when they were talking like that, somebody came there with a new gun and he presented that to Guru Gobind Singh. So Guru Gobind Singh said, okay Dalla, this is a new gun, I want to try this out. Call someone from your tribe and let me see how this gun works. Now Dalla thinks that who should be brought for that job. So he went around, he asked his people, but nobody came forward, nobody was prepared to come and stand in front of the gun which Guru Gobind Singh had. So after going through all the people in his tribe, he came back with no one with him. So he stood there in front of Guru Gobind Singh in embarrassment and he said that master, no one is ready to come. So then Guru Gobind Singh said, okay, you go outside and there may be a couple of my disciples and you just tell them that master needs a dear one to try a gun. So when Dalla went outside, there were two disciples of Guru Gobind Singh. One was tying his turban and the other one was combing his hair. So as soon as they heard that Guru Gobind Singh wanted one disciple to try the gun, they both left the things which they were doing and they both ran to Guru Gobind Singh. The one who was tying the turban, his hair was all over, and the other guy the disciple who was
combing his hair, he also had left his comb there. So they both came there and they stood in front of Guru Gobind Singh, and they both were appreciating and talking about the qualities of the other person. One was saying that, Master, you should try me because I am a useless one in your army. I am the worthless one, because the other person is very good at taking care of the horses, and if he will be dead, who will take care of the horses? So it is better that you take me as the target and you try the gun on me. The other tier one said that, no, Master, you don't remember that in the battle of Chamkaur Sahib and the other battles, he fought with so much courage, and there is no way you can go to the battlefield again without this dear one. So he is very precious, and I am the useless one, so you try me out. So they were fighting with each other, and they both were insisting that Guru Gobind Singh may use them. So Guru Gobind Singh said that, okay, both of you go and stand there, and I will try the gun on both of you. So when both of them went there and stood there, one behind the other one. So the person who was standing behind the first one, when Guru Gobind Singh pulled the trigger, Guru Gobind Singh was not going to kill either of them. So he, even though it looked like he was using them as a target, but he just lifted his gun up and he shot in the air. But when he shot the bullet, at that time the person who was standing behind the first one, he at once readily, with all his speed, he came and he stood in front of the other one, because he wanted to become the target. So when that happened, Guru Gobind Singh told Dalla that, you see, this is what is meant by discipleship, and in the battle I need the disciples like this and not like your people. प्यारे बच्चों, जो स्टोरी अभी बाबा जी ने पंजाबी में और भाई साहब ने इंग्लिश में कही है, वो हिंदी में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बाबा जी ने जो स्टोरी बताई उसके अनुसार मालवा पंजाब में उनका गुरु गोविंद सिंह का एक शिष्य था, डल्ला जिसका नाम था। वो बराड़ जाति का एक बहुत बड़ा सरदार था। जब गुरु गोविंद सिंह जी मालवा की तरफ आए तो डल्ले ने उनसे कहा कि महाराज जी, अगर आपने उस लड़ाई में आप हमें बुलाते, हमारे पास बहुत बड़े जवान थे और उस जंग में आपकी हार नहीं होती। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि देख भाई डल्ला, परमात्मा की मर्जी है, मैं उसी में खुश हूँ, पर फिर भी आमतौर पे जो गुरुओं के साथ शिष्य होते हैं, जो आसपास रहते हैं, उनको अपनी करनी पे ही बहुत मान होता है। वो गुरु पे भरोसा कम ही करते हैं। वो अपनी चतुराई में, अपनी हिम्मत में, अपनी वड्याई में ही कई बार समझते नहीं है गुरु की दया को। उसने भी यही देखा कि नहीं, अगर आप हमें बुलाते तो आपकी हार नहीं होती। गुरु गोविंद सिंह से वो बातें कर ही रहे थे, इतने में गुरु गोविंद सिंह जी का एक शिष्य आया। उन्होंने आके कहा, एक गन दी उनको, एक बंदूक दी कि सर गुरु जी, मैं एक बंदूक लेके आया हूँ, बहुत अच्छी है। तो गुरु जी ने डल्ले से कहा कि भाई आप किसी को बाहर से बुला के लाओ, मुझे गन टेस्ट करनी है, गोली चला के देखते हैं कि कितनी पावरफुल है। कोई इंसान को बुलाओ, अपने किसी बहादुर इंसान को बुलाओ। डल्ला बाहर गया, उसने सबसे बोला, लेकिन गुरु पे विश्वास नहीं था, सिर्फ बातें ही थी। तो कोई भी डल्ले का जानकार, उसका जितने भी लोग थे, कोई भी तैयार नहीं हुआ। अब डल्ला सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूँ। वो मुंह लटका के आके गुरु साहब के सामने खड़ा हो गया, बोला, जी महाराज जी, कोई तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है डल्ले, आप बाहर जाइए और बाहर मेरा कोई शिष्य होगा, उसको बुला के लाइए। डल्ला बाहर गया तो उसने देखा कि दो गुरुजी के शिष्य बाहर हैं, जो कि एक पगड़ी बांध रहा था और एक अपने बालों में कंघी कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि गुरु साहब ने बुलाया एक सेवक को, उन्होंने गन टेस्ट करनी है। तो वो दोनों जिस कंडीशन में थे वो भाग लिए कि मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। जो पगड़ी बांध रहा था उसके हाथ में पगड़ी थी, और जो बालों में कंघी कर रहा था उसने वैसे ही अपने बाल पकड़े हुए थे और वैसे ही वो आ गया। तो एक ने कहा कि गुरु साहब, ये घोड़ों की देखभाल बहुत अच्छी करता है, इसलिए मुझे निशाना बनाओ, इसकी जरूरत है, क्योंकि ये घोड़े बहुत अच्छे तैयार करता है। दूसरे ने कहा, नहीं जी, ये लड़ाई में बहुत माहिर है, इसने पहले भी लड़ाइयाँ लड़ी और ये जंग के मैदान में बहुत अच्छा है, इसलिए आप मुझे निशाना बनाओ।
तो गुरु साहब ने बोला कि ठीक है, आप दोनों ही खड़े हो जाओ, मुझे तो गन टेस्ट करनी है। अब रो में खड़े होने के लिए भी उनमें एक था कि मैं आगे हूं, मैं आगे हूं। इन बिटवीन गुरु साहब ने वो लाइन में खड़े हुए और उन्होंने अपने सेवकों को मारना नहीं था, सिर्फ डल्ले की तसल्ली करानी थी कि गुरु के शिष्य कैसे होते हैं, उनको कितना भरोसा होता है, गुरु की हर बात पे अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। तो उन्होंने अपनी बंदूक ली और उसको ऊपर करके निशाना लगा दी। इन बिटवीन जब वो उन्होंने निशाना लगाया तो जो सेवक पीछे खड़ा था उसने सामने वाले को धक्का देके उसके आगे आके खड़ा हो गया। अब गोली तो ऊपर से चली गई थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि देख प्यारेया, इसको कहते हैं शिष्य, ठीक है। ये प्रेमी जंग के मैदान में ऐसे ही सेवक काम आते हैं, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों के खिलाफ बहुत लड़ाइयां लड़ी थी। उन्होंने अपने सेवकों की रक्षा के लिए उनको ये करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने डल्ले को बताया कि जंग के मैदान में लड़ाई लड़ने के लिए सबसे बड़ी जरूरी, जो बाबा जी ने भी बहुत बार कहा कि फौज में सबसे पहला होता है हुक्म मानना। और सत्संगियों को भी बाबा जी ने हमेशा कहा कि अपने गुरु का हुक्म मानना चाहिए और परमात्मा की जो रजा है उसमें राजी रहना चाहिए। अगर हम अपने गुरु से प्यार करते हैं तो हम उसकी बात भी मानेंगे, उसकी बातों पे विश्वास भी करेंगे। और अगर हम गुरु पे विश्वास ही नहीं करते, हम गुरु को अपनी सफाइयां देते हैं, गुरु के आगे भी चतराइयां करते हैं और गुरु को बातों में खुश करने की कोशिश करते हैं। एक बार ऐसी कोई बात हुई तो मैंने बाबा जी को बाबा जी ने कोई मुझे बात की तो मैंने कहा जी आप जानी जान हो। तो बाबा जी ने कहा हाँ बेटे, संत जानी जान होते हैं, गुरु जानी जान होते हैं। अगर वो अपनी असली फॉर्म में आए तो सेवक गुरु को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहता। वो इतनी गलतियां करता है, इतनी बेवकूफियां करता है कि गुरु के आगे मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहता। इसलिए बेटे जो कहा जाता है उसको मानते हैं और आगे से उन्होंने साथ में मजाक में ये भी कहा कि कभी भी अंधे को अंधा नहीं कहते। ये बाबा जी की वडियाई थी। हमने देखा है बाबा जी के साथ जितना हमें वक्त मिला है, सच में बाबा जी की एक अपनी रचना रही है। और बाबा जी के सिस्टम में बाबा जी ने जो भी चाहा वो किया और जिन प्रेमियों ने कहा माना, आप सब उन चीजों के गवाह हैं। वो आज अपनी जिंदगी अपने गुरु की याद में जी रहे हैं। और जिन प्रेमियों ने चतुराई की, अपनी होशियारी से बाबा जी को खुश करने के लिए कहा, अक्सर बाबा जी आजकल कभी वक्त मिला तो हम जो पुरानी फोटोज हैं उनको जरूर संगत के सामने किसी रूप में पेश करने की कोशिश करेंगे। तो बाबा जी, मैं जब भी अपनी फोटो मैं जो खींचता था, जो मुझे बाबा ही ने ही बताया, बोला था खींचने के लिए, और बाबा ही ने मुझे कैमरा ला के दिया था और किस तरीके से बाबा जी ने मुझे वो फोटोग्राफी सिखाई थी। तो जब भी मैं फोटो प्रोसेस करा के उसको मैं प्रिंट निकलवा के बाबा जी के पास लाया करता था, तो बाबा जी कई प्रेमियों को देख के बहुत हंसा करते थे कि बेटे जब भी फोटो खींचने का वक्त होता है सबसे सामने खड़े होते हैं, सबसे आगे खड़े होते हैं, और जब सेवा का मौका होता है ये कहीं दिखाई नहीं देते। मतलब बाबा जी को भी इस चीज का पता था। हमेशा वो ध्यान में रखते थे कि कौन प्रेमी सेवा करता है और कौन प्रेमी दिखावा करता है। इन सब बातों को अगर पुराने गुरुओं की हम स्टोरियां सुनते हैं और अपने ऊपर वो घटित करते हैं, जैसे वो शिष्य रहे हैं जो बंदूक के निशाने के लिए तैयार हो गए, अगर हम अपनी बात करें तो हम सोच भी नहीं सकते। हमारी जिंदगी में जो भी रचना थी वो बाबा जी की थी। हम लोगों की कोई भी वडियाई नहीं थी, हमारी कोई कुर्बानी नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा जी की दया थी, बाबा जी की अपनी रचना थी। हम उन सेवकों के पैरों की धूल जैसे भी नहीं है। हकीकत ये बात है कि हम में कोई भी ऐसा एक गुण नहीं है जो कि उन सेवकों की बराबरी कर सके। सच में शर्म आती है, लेकिन हम बहुत खुश हैं कि हम लोगों के साथ बाबा जी की दया रही। बाबा जी ने जो चाहा वो हमसे करवा लिया। बहुत बार प्रेमी कहते हैं, हमारे बारे में बातें करते हैं, तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि बाबा जी दया करें, जैसा गुरुमेल बाबा जी कहते हैं, सत्संग में कहा करते थे, किसी दिन वैसा बन जाऊं तो जीना सार्थक हो जाएगा। इसलिए हम सभी प्रेमियों का फर्ज बनता है कि जो नित्य नियम हम सबको बताया है और प्यारे बच्चों के लिए जो हमें मौका दिया है,
इन संडे के कार्यक्रम के थ्रू बच्चों के लिए भी प्रेरणा है। बच्चों को भी चाहिए कि अपने गुरु का कहना माने, बाबा जी का कहा माने। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पढ़ाई दिल लगा के करनी है, और स्कूल में जो भी आपके एग्जाम होते हैं उनको दिल से करना है। पढ़ाई को कभी भी साइड नहीं करना है। खेलना भी है लेकिन पढ़ाई भी जरूर करनी है। अगर हम पढ़ाई करेंगे तो बाबा जी ने कहा है कि बच्चे अगर पढ़ाई करते तो अच्छे इंसान बनेंगे, और अच्छे इंसान बनेंगे तो अच्छे सत्संगी भी जरूर बनेंगे। हम बड़ों का भी फर्ज बनता है कि सिर्फ बातों से ही नहीं, अपने गुरु को खुश करने की बात करें। जो बाबा जी ने प्रॉपर तरीका हम सब के लिए कहा है वो है भजन अभ्यास। हम सबको पूरे दिल से कोशिश करनी चाहिए, अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम कोशिश करेंगे तो बाबा जी ने हमेशा कहा है कि अगर सेवक एक कदम चलता है तो गुरु 1000 कदम चलता है, और वो 1000 कदम के हम सभी गवाह हैं कि वो दया के पात्र ही हैं। जो आज जिंदगी हम जी रहे हैं, जो कुछ हमारे साथ है, हमारे पास है, जो हमारी दुनियावी तौर पे औकात है, वो सब हमारे महान गुरु की दी हुई है। अपने साथ वालों को देखें तो हमारे कोई 4 हाथ नहीं है जो हमने तरक्की की है। बहुत, मैं ये कहूँ कि 100 से भी ज़्यादा % हम सब अपने महान गुरु की दया की वजह से ही है। और भजन करना, जैसे हम रोजाना बाबा जी की बात याद दिलाते हैं कि सिर्फ शुक्राने वाली बात है। अगर हम रोजाना अपने गुरु को याद करते हैं तो जो उन्होंने हम पे दया की है वो एक शुक्राना का तरीका है। अगर हम लगे रहेंगे तो जरूर अपने महान गुरु की दया, जैसा बाबा जी चाहते हैं वैसा हम कर पाएंगे।